اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عزیز دوستو، شب معراج ہر اعتبار سے ایک بہت بڑی بابرکت رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راتوں میں اس امت پر اور اس امت کے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑے بڑے انعامات کیے ہیں. نماز جیسا بابرکت عمل جو ایمان کے ارکان میں سے ہے وہ اسی رات میں فرض ہوا، اور آپ کا معراج اور اسراء کا مقدس سفر اسی رات میں ہوا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جوریہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے گھر میں آرام فرما رہے تھے تو جبرائیل امین آئے اور آپ کو خانہ کعبہ لے گئے. پھر وہاں سے حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے گئے، اور وہاں پر حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی. اپنے گھر سے کعبہ مقدسہ اور وہاں سے بیت المقدس تک کا جو سفر طے ہوا، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں. اسراء اور معراج میں بہت بڑا فرق ہے. لوگ اس کو ملاتے ہیں، اسراء کہتے ہیں، کسی کو معراج کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسراء سفر الگ ہے، معراج الگ ہے. دونوں سفر اسی رات میں ہوئے تھے. اور بیت المقدس سے حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی سواری کے ذریعے پہلے آسمان پر لے گئے. پھر وہاں سے دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں اور ساتویں آسمان تک گئے، اور ہر آسمان میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات ہوئی. جب سدرۃ المنتہا نامی جگہ پر پہنچے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ اس جگہ سے آگے ہم کو جانا منع ہے، اب یہاں سے اگلا سفر آپ کو ہی طے کرنا ہوگا. احادیث میں تذکرہ آتا ہے کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، اور جہنم میں مختلف لوگوں کو دکھایا گیا کہ مختلف لوگوں کو مختلف عذاب ہو رہا ہے، اور بہت سی چیزیں وہاں پر دکھائی گئی، اور ایسی چیزیں دکھائی گئی جس کا دوسرے لوگوں کے لیے ناممکن ہے. جیسے کہ میں نے کہا، اسی مبارک سفر میں نماز جیسا مقدس عمل فرض ہوا. جب اللہ سے ہم کلام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی. مگر جب اللہ سے ہم کلام کر کے نیچے اترے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو کیا انعام دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے 50 نمازیں ملی ہے. حضرت موسیٰ جانتے تھے ان کو بنی اسرائیل جیسے قوم سے پالا پڑا تھا. انہوں نے محسوس کیا، سمجھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کر نہیں پائے گی، اللہ سے کم کروائیے. تو اللہ کے پاس جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی تو نمازیں کم کرائی 45. پھر جو نیچے آتے جاتے تھے تو ہر بار 5 نمازیں کم کر دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 5 نمازیں ان کے پاس لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. تو پھر واپس اللہ کے پاس گئے تو اوپر سے آواز آئی، یہ 5 نمازیں آپ پر فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 کا ثواب 50 سے مل گیا. ہمارے یہاں کمی نہیں ہوتی، لیکن آپ کے درخواست پر ہم نے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے چھوٹ دی. ذرا غور کرو میرے مسلمان بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، دین کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो दीन के अहकामात लेकर आए। लेकिन नमाज जैसा मुकद्दस अमल अल्लाह ताला ने खुद अपने हबीब को अपने पास बुला के ये फर्ज किया। जरा गौर कीजिए नमाज की कितनी अहमियत है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, नमाज बहुत बड़ी चीज है और यही मुसलमान की पहचान है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खास खजाने से अर्श से दो और एक ऐसा इनाम लेकर आए। सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें आमन रसूल से आखिर तक, वो भी एक खास इनाम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से लेकर आए। और तीसरा खास इनाम अपनी उम्मत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से ले आए कि मेरी उम्मत में से जो भी एक नेकी करेगा उसको 10 नेकी का सवाब मिलेगा। और इसके अलावा बहुत से इनामात अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास बुलाकर खास दावत के जरिए देकर भेजा। और मेरे अजीज दोस्तों, सबसे अहम चीज जैसे कि मैंने अर्ज किया कि वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम दिखाई गई, और जन्नत में जलने वालों को भी दिखाया गया, और उनकी तकलीफों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से मुशाहदा फरमाया। उसमें से एक अजाब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहदा फरमाया कि वहां पर एक ऐसा अजाब भी दिया जा रहा है कि चंद लोग हैं कि फरिश्ते उनके सरों को कुचल रहे हैं, और फिर सर दोबारा अपने मकाम पे लगता है, फिर कुचलते हैं, और जब दोबारा लगता है तो बार बार ऐसा करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, ये वो लोग हैं जो तुम्हारी उम्मत में नमाजों की पाबंदी नहीं करते थे। और जो लोग नमाजों में काहिलियत सुस्ती करेंगे उनको अजाब दिया जाएगा। और जो लोग, साफ सुन लीजिए, मैं बबांगे दोहल कहता हूँ और आपसे साफ तौर पर कहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर दिखाया गया कि जो लोग ज़कात नहीं देते उनको जहन्नम के पत्थरों और जहन्नमियों के खून और पीप को उनको घोल कर पिलाया जा रहा था। अल्लाह ताला ने हमारे माल पे दूसरों का भी हक रखा है। हम पर फर्ज है कि उनको उन लोगों तक उनका हक पहुंचा दे कि हमारे माल में से ज़कात निकाल कर हमारे माल की गंदगी को दूर करें। बस इतना ही नहीं, जो ज़कात नहीं देते उनको ज़क्कूम खिलाया जा रहा था। ज़क्कूम एक कड़वा फल होता है जिसका अंदाजा हम इस रहती दुनिया में करना मुश्किल है। और मेरे अजीज नौजवान दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर जिनाकारों का भी अजाब दिखाया गया। वहां पर दिखाया गया कि उनके सामने कि एक खुशनुमा फल, अच्छे फल रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ बदबूदार गंदे फल भी रखे हुए हैं। उसके बावजूद कि उनके सामने अच्छे और खुशबूदार फल हैं, लेकिन वो उसको खा नहीं पाते लेकिन उनको एक खाना पड़ता है जो बदबूदार और गंदा फल है। इसकी वजह यह है कि हम अपने घर में जायज और पाकीज़ा चीज, अपनी बीवी जो हलाल तरीके से आए, उस कहने के बावजूद हम गंदे तरीके से अपनी सोच को इस्तेमाल करते हैं और वो काम करते हैं। इसी की वजह है, इसी वजह से अल्लाह ताला उनको अजाब देगा। और सूदखोरों को दिखाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया, कौन लोग हैं कि जिनके पेट मोटे हैं और उनके पेटों में सांप भरे हुए हैं। आपसे फरमाया गया कि वो लोग हैं जो बैंकों से, मतलब सूद खानों से सूद को लिया करते थे और सूद को हलाल समझकर खा लिया करते थे। इससे सूद की गंदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूद कितनी गंदी चीज है, और वो क़यामत के दिन हमारे पेट में एक जहरीला सांप बनकर आएगा। और मुख्तलिफ किस्म के अज़ाबात देके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहदा करके दुनिया में अपनी उम्मत को मुतनब्बिह किया कि फुला चीज करने वालों को, फुला करने वालों को हमने उस अजाब में मुब्तला देखा है, और अपनी कौम को, अपनी उम्मत को इससे दूर रहने की तनकीद, इससे दूर रहने का हुक्म फरमाया। मेरे अजीज भाइयों, मैं आपसे चंद बातें कहता हूँ। ए मुबारक रात जिसको शब मेराज कहते हैं,
उसका नाम सिर्फ चंद इबादत करना नहीं है, उसका नाम सिर्फ रातों को जाकर इबादत करने का नहीं, और नाउज़ुबिल्लाह माफ कीजिएगा मुझे कि फजर की नमाज को हम छोड़ दें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ उन्हीं रातों में इबादत करेंगे और बाकी दिनों में सिर्फ नमाजें भी नहीं करेंगे। हम उम्मत वसत हैं, हम दरमियानी उम्मत है। हमको ये हुक्म दिया गया कि थोड़ा थोड़ा करो, हर रोज करो। ऐसा इस्लाम का हरगिज़ मतलब नहीं है कि पूरी रात एक इबादत में गुजार दी और बाकी दिनों में कुछ नहीं। क्या मतलब है इसका? यकीनन आप जागिए रातों को, इससे हरगिज़ इनकार नहीं। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगिए, गिड़गिड़ाइए, नमाजें पढ़िए, कुरान पढ़िए, मगर ये आपका अमल रोजाना थोड़ा ही सही लेकिन एक टाइम टेबल के साथ हर रोज वक्त मुकर्रर करके होना चाहिए। वैसे अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई हर रात बाबरकत है, हर वक्त हर घड़ी बरकतें नाजिल होती है, बस हमारी देरी होती है। अल्लाह ताला हमारे मुंतज़िर रहते हैं हर वक्त हर घड़ी। ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं है कि सिर्फ उसी रात को दुआएं कबूल होती है, उसी रात में अमाल कबूल होते हैं। हाँ, उस रात में अमाल का सवाब बढ़ के मिल सकता है, लेकिन इसका ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं है कि बाकी रातों में दुआएं कबूल नहीं होती। हमको मुतवस्सित बनना पड़ेगा। अमल कीजिए, कुरान पढ़िए, दुआ कीजिए, हर रोज कीजिए, थोड़ा कीजिए लेकिन हर रोज कीजिए। और ये मुहादा कीजिए, चाहे किसी मैदान में हो, मैं आपसे साफ तौर पर कहता हूँ, हम जो भी अमल करेंगे उसी वहां तक करेंगे जहां तक शरीयत इजाजत देती है, और उसके आगे हरगिज़ नहीं बढ़ेंगे। जहां तक शरीयत आगे इजाजत देती है वहां तक हम पहुंचेंगे और फिर पीछे हटेंगे, उससे आगे हम नहीं जाएंगे। अल्लाह के हुक्मों को हम नहीं तोड़ेंगे। मेरा अजीज, जैसे क्या वजह है कि सूद हमारे माशरे में इतना आम हो गया कि सूद खा रहा है और उसको पता नहीं चलता। यही वजह है कि हमारे दुआएं कबूल नहीं होती। मैं साफ तौर पर कहता हूँ, जब तक हमारे पेट में एक हराम का लुक़मा रहेगा तब तक हमारी नमाजें और दुआएं कोई कबूल नहीं होगी। अमाल, नमाजें और दुआएं और इबादत कबूल होने के लिए पहली शर्त है कि हमारे पेट में हलाल रोजी जाए। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। एक आदमी मुझे नबी में तशरीफ लाया, वो गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा था। लोगों ने समझा कोई हकीकत में वली बंदा होगा। उसका नाम हदीस शरीफ में जिक्र नहीं आया है। बहरहाल हदीस सही है, सही रिवायत से है, साबित है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक फरमाया है, तआमुहु हराम व लिबासुहु हराम अन्ना इस्तजाबु लहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका पहनना हराम, उसकी दुआ कहाँ कबूल होगी। इससे पता चलता है कि हलाल रोजी हमारे लिए शर्त है हर अमाल के लिए। जितनी भी बातें मैंने मेरे अजीज दोस्तों आपसे कही, इस रात का यही पैगाम मिलता है कि हम आज से अहद कर लें कि आज से कोई भी ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे हमारा अल्लाह हमसे नाखुश हो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खातिमा बिल खैर फरमाए, ईमान पर कलिमे शहादत पर मौत नसीब फरमाए। हम सबको सूद, जिना और इन जैसे तमाम गुनाहों से और अल्लाह हम सबको बचाए। अल्लाह हमारे पेट में हलाल कमाई नसीब फरमाए, हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तमाम शुरूर से बचाए हैं। मेरे भाइयों, ऐसी रातों में दुआ कीजिए, अपने घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क के अमन अमन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की वजह से हम पर ऐसे हुक्मरानों को मुसल्लत न फरमा, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। मेरे अजीज नौजवानों, जो भी हमारे हुक्मरान हम पर मुसल्लत होते हैं, जो भी जालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत होते हैं, हमारे गुनाहों का ही नहुसत होती है।
اس سے دعا کیجئے اور اپنے اعمال کو درست کیجئے. اللہ سے کہیے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالم حکمران کو مسلط مت فرما, کہ اچھے لوگوں پر بھی عذاب آ جائے. ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین.